بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ 53۔ جب مسلمان وعدے کے مطابق حج کر کے چلے تو مشرکوں کو اطمینان ہوا اور وہ اپنے کاروبار میں لگ گئے، لیکن خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا دل کسی کام میں نہ لگتا تھا۔ یہ دونوں قریش کے سردار تھے، دونوں رئیسوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، دونوں کو شکار کا شوق تھا، آئے دن شکار میں لگے رہتے تھے۔ مگر جب سے انہوں نے قرآن شریف کی کچھ آیتیں سنی تھی، اس وقت سے ان کے دل اسلام کی طرف جھکتے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن دونوں حرم شریف میں اکٹھا ہوئے۔ خالد نے کہا، عمرو، میرے دل کو کوئی طاقت اسلام کی طرف کھینچ رہی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا باپ زندگی بھر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہا، میں بھی ان کا دشمن رہا۔ احد میں نے پہاڑی کی گھاٹی سے نکل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں تباہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن اب اسلام اور مسلمانوں سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں جانتا یہ انقلاب میری طبیعت میں کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ خالد، عمرو نے کہا، میری بھی بالکل یہی کیفیت ہے۔ میرے باپ عاص کی اور میری اسلام سے دشمنی مشہور ہے۔ مجھے مسلمانوں اور ان کے نبی سے خدائی بیر تھا، مگر اب دشمنی نا و خیال ہو گئی ہے۔ دشمنی کی جگہ ہمدردی نے لے لی ہے۔ اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ میں مخالفت کرتا رہا ہوں تو شاید میں اب تک مسلمان ہو گیا ہوتا۔ میں سوچتا ہوں، خالد نے کہا، کہ یہ بت جو صدیوں سے اس حرم میں رکھے ہوئے پوجے جاتے ہیں معبود نہیں ہے۔ پتھروں کی مورتیاں، دھاتوں کے پتلے خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورتیں کیا پوری کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ بزرگوں نے ایک سوئی سے عبادت کرنے کے لیے بت بنائے تھے۔ اس دنیا کا نام جس میں ہم تم رہتے بستے ہیں، ان بتوں کے علاوہ کوئی اور ہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہی زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے ٹھیک سمجھا خالد، عمرو نے کہا۔ میں بہت سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا وہی ہے کہ جس کی عبادت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں۔ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مگر جو کلام وہ پڑھتے ہیں وہ کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ پھر وہ برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں بت پرستی سے اکتا گیا ہوں، خالد نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میں بھی اکتا گیا ہوں عمرو۔ چلو مدینہ چلو اور وہاں چل کر مسلمان ہو جائیں۔ جس خدا کو آج تک سرکشی کرتے رہے، جس خدا کو ہم برا کہتے رہیں، اسی خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ یہ تو تم نے میرے دل کی بات کہی، عمرو نے کہا۔ ایک آواز آئی، او چپکے چپکے کیا مشورہ کر رہے ہو تم؟ خالد و عمرو نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے عثمان بن طلحہ مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ بھی مکہ کا رئیس تھا، خالد اور عمرو کا دوست تھا۔ وہ بھی آ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ عثمان، خالد نے کہا، ہم سوچ رہے ہیں کہ جس مذہب پر ہم قائم ہیں، کیا وہ مذہب حق ہے؟ کیا بت ہی دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں؟ میرے دل میں بھی یہی خیال بار بار آتا ہے، عثمان نے کہا۔ بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بت خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور ہستی ہے۔ عمرو نے جلدی سے پوچھا، کیا تم بھی اس خدا کے قائل ہو جس کو مسلمان مانتے ہیں؟ اور کیا مسلمانوں کا مذہب سچا ہے؟ میرا ایسا ہی خیال ہے، عثمان نے کہا۔ سوچو، ہمارے مذہب میں شراب حلال ہے، حالانکہ شراب پینے والا اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، گندی نالیوں میں لوٹنے لگتا ہے، ماں بہن اور بیوی میں تمیز نہیں کرتا۔ جوا ہمارے یہاں جائز ہے۔ ایک جواری اول درجے کا بے حیا اور گنڈا بن جاتا ہے۔ جب کھیلنے والا ہارنے لگتا ہے تو بیوی بچوں تک کو داؤ پر لگا دیتا ہے اور پھر چوری ڈکیتی پر اتر آتا ہے، کسی کو قتل بھی کر ڈالتا ہے۔ یہ باتیں اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کتنا برا کام ہے یہ زنا، جس کو ہم برا نہیں سمجھتے، غرض دنیا بھر کی برائیاں ہم میں موجود ہے۔ یہ سب مذہب کی پستی کی وجہ سے ہے۔ اسلام ان تمام کاموں سے روکتا ہے، پرہیزگاری پر ابھارتا ہے۔ میرے خیال میں اسلام سچا مذہب ہے۔ اگر یہ بات ہے، خالد نے کہا، تو کیوں نہ ہم تینوں چل کر مسلمان ہو جائیں؟ نہایت نیک صلاح ہے، یہ عثمان نے کہا۔
तीनों इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर उनके मदीना जाने से इस्लाम के झुकाव का राज खुल गया तो कुरैश उनके रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने खुफिया तैयारियां की। 15-20 दिन के बाद एक दिन सुबह सादिक से पहले तीनों दोस्त घोड़ों पर सवार होकर रात के अंधेरे में बड़ी खामोशी से मक्के से निकले और मदीने की तरफ रवाना हो गए। जब सूरज निकला तो लोगों को उनकी रवानगी का हाल मालूम हुआ, मगर कुरैश जानते थे कि वे तीनों इस्लाम और मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी रखते हैं। इसलिए उन्हें यह ख्याल ही नहीं हुआ कि वे मदीना के दरबारे रिसालत में हाजिर होने के लिए चले गए हैं, बल्कि उन्होंने ये समझा कि तीनों शिकार के शौकीन हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं। कुफ्फारे मक्का ने भी ख्याल कर लिया कि 2-4 दिन में शिकार खेल कर वापस आ जाएंगे, मगर जब हफ्ता गुजरने के बाद भी वे वापस न आए तो उनको बड़ी चिंता हुई और वे उनकी खोज में लग गए। हम पहले बयान कर आए हैं कि बनु खुजाओ ने मुसलमानों से और बनु बकर ने कुफ्फार से समझौता कर लिया था। ये दोनों कबीले एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। कबीला खुजाओ कमजोर था और कबीला बनु बकर बड़ा ताकतवर था। इसलिए बनु बकर वाले खुजाओ वालों को पीस डालने की चिंता में लगे रहते थे, पर ये दोनों कबीले हर दो फरीक से अलग अलग समझौता कर चुके थे। इसलिए उन्हें 10 साल तक सुलह व अमन के साथ रहना चाहिए था, पर अक्सर कम समझ इंसान ताकत ही को सब कुछ समझते हैं। बनु बकर वाले ये समझकर कि मुसलमान मदीने में सैकड़ों मील के फासले पर रहते हैं, बनु खुजा की मदद के लिए क्या आएंगे। बनु खुजाओ वालों पर जुल्म ढाने लगे। बनु खुजा वालों ने उन्हें बहुत समझाया, अहदनामा की तरफ तवज्जो दिलाई, मुसलमानों की बड़ाई और ताकत से हराया, मगर वे बाज न आए और ऐलानिया उनको सताने लगे। एक दिन मोहल्ला बतीरा में जहां बनु खुजा रहते थे, बनु बकर के कुछ गुंडे पहुंचे और औरतों को छेड़ने लगे। बनु खुजा ने अब भी सब्र किया और तरह देकर वक्त गुजारना चाहा, लेकिन बनु बकर गोया लड़ने के लिए तैयार थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम मुसलमानों के भरोसे पर फूले हो, कान खोल कर सुन लो, मुसलमान हमारा कुछ नहीं कर सकते, इतनी बकवास न करो। बनु खुजाओ के एक आदमी ने इसका जवाब दिया। बनु बकर लड़ने का बहाना ढूंढ ही रहे थे। उन्होंने फौरन तलवारें खींच ली और बिना कुछ कहे सुने बनु खुजाओ को काटना शुरू कर दिया। बनु खुजा कमजोर थे, भाग निकले। वतीरा का बाजार बंद हो गया। लोग बदहवास होकर भागने लगे। संग दिल और गुंडे बनु बकर ने 20 आदमियों को कत्ल कर डाला। शाम के वक्त जब वहां से वापस हुए तब जाकर अमन व अमान कायम हुआ। सूरज डूबने से पहले बनु खुजाओ के सरदार जमा हुए और दिन के वाक़ये पर अफसोस जाहिर करते हुए इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि नौफुल से चलकर शिकायत करें। नौफुल बनु बकर का सरदार था, निहायत चालाक और बेरहम था। बनु खुजा उसके मकान पर पहुंचे और उससे शिकायत की कि उसके कबीले वालों ने बेवजह उनके 20 आदमी मार डाले हैं। नौफुल ने तमाम वाकया सुनकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम मुसलमानों से समझौता करके इतराने लगे हो, तो अब मुसलमानों को अपनी मदद के लिए बुला लाओ। लेकिन आप कुरैश वालों के दोस्त हैं, बनु खुजा के सरदार ने कहा, और उनका मुसलमानों से समझौता है। आप बदअहदी करके लड़ाई की आग को न भड़काएं। बेवकूफों, नौफुल ने हंसकर कहा, इससे लड़ाई की आग नहीं भड़क सकती। हमने अहद किया हुआ है, जो लोग मुसलमानों से समझौता करेंगे मैं उन सबको कत्ल कर डालूंगा। कमीनों, तुमने कुरैश को छोड़कर मुसलमानों से क्यों समझौता किया? अब उसका मजा चखो। एक आदमी भी तुम्हारे कबीले का जिंदा न रहने पाएगा। बनु खुजाओ मायूस होकर वापस लौटे। जब वे वापस लौटे तो नौफुल ने सफवान बिन उमैया, इक्रिमा बिन अबू जहल और इब्द बिन अम्र वगैरह को बुलाकर तमाम वाकया सुनाया और कहा, मौका है कि हम आज रात बनु खुजाओ को पीस डाले। इससे उन लोगों पर जो मुसलमानों से समझौता कर चुके हैं असर पड़ेगा और वे हमारी तरफ झुकेंगे और फिर हमारी ताकत बहुत कुछ बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी तदबीर है, सफवान ने कहा। तुमने पहले ही ये बात क्यों न सोची? हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। नौफुल ने कहा, इसका वक्त अभी आया है। तुम अपनी फौज को बुला लो और रात को बनु खुजाओ पर जा चढ़ो। तमाम लोगों ने अपने अपने गुलाम भेजकर फौज बुला ली। नौफुल ने भी अपनी फौज बुला ली थी। ये सब सरकश
बदअहद और मक्कार लोग रात की तारीकी में अपनी जालिमाना हरकतों से अहदनामे की धज्जियां उड़ाने के लिए रवाना हुए। आधी रात के करीब मोहल्ला बतीरा में पहुंचे। अंधेरी रात थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सितारे आसमान पर बिखरे हुए चमक रहे थे। कायनात का जर्रा जर्रा खामोश था। बनु खुजाआ बेफिक्री से घरों में घुसे आराम की नींद सो रहे थे कि अचानक सुकून छिन गया। मुख्तलिफ आवाजों से मोहल्ला गूंज उठा। बनु बकर और कुरैश वालों की बेपनाह तलवारें मजलूम बनु खुजाओं को कत्ल करने लगी। मर्दों, औरतों और बच्चों में कोई फर्क न रहा। जो सामने आ गया मार दिया गया। बनु खुजाआ इस अचानक मुसीबत से घबरा गए। वे घबरा कर दौड़े और हरम शरीफ में जा छिपे। अरबों का ये पहले कानून था कि जो आदमी हरम में पनाह ले लेता था उसे कत्ल न किया जाता था। ख्याल करते कि वो बुतों की पनाह में आ गया है, मगर बनु खुजाओं को वहां भी पनाह न मिली। वे हरम में भी कत्ल किए गए। कुफ्फारे मक्का को इस बात पर गुस्सा था कि बनु खुजाआ ने मुसलमानों से क्यों समझौता किया। वे जानते थे कि मुसलमान सैकड़ों मील के फासले से उनकी मदद को न आएंगे, इसलिए उन पर संगदिलाना और बेरहमाना सितम कर रहे थे। बुदैल बिन वर्का कबीला बनु खुजाओं का सरदार था। जब कुफ्फारे मक्का उसके घर में घुसकर उसका सामान लूटने लगे तो उसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ शाहे मदीना, ऐ खातमुन नबीयीन, हमारी फरियाद सुनिए। हम पर इसलिए जुल्म किया जा रहा है कि हमने आपसे समझौता क्यों किया। आइए और हमको इन भेड़ियों से बचाइए। उस वक्त एक रौबदार आवाज आई, लब्बैक लब्बैक ऐ बनु खुजाआ। सब इस आवाज को सुनकर हैरान हुए। कुफ्फारे मक्का पर भी रौब छा गया। उन्होंने कत्ल और गारतगरी बंद कर दी और अपने आदमियों को लेकर वापस लौट गए। जब सुबह हो गई और सूरज तबाहशुदा मोहल्ला बतीरा पर निकला तो हर घर से रोने पीटने की आवाज उभरी। मर्द, औरतें और बच्चे अपने मकतूल रिश्तेदारों को याद करके रो रहे थे, चूंकि बेचारे कमजोर थे, दुश्मनों से बदला न ले सकते थे, इसलिए आंसू बहा बहा कर इंतकाम की आग को ठंडा कर रहे थे। बुदैल बिन वर्का ने अम्र बिन सालिम को बुलाकर कहा, अम्र बताओ हमको क्या करना चाहिए। जालिमों ने हमको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, सिवाय इसके हम। अम्र ने कहा, शाह मदीना के हुजूर में फरियादी बने, और क्या कर सकते हैं, यही मेरा इरादा है। बुदैल ने कहा, आओ मैं और तुम दोनों चलें। चलिए, अम्र ने कहा, उसके दरबार में चलिए जो बड़ा रहम दिल और तमाम इंसानों का बड़ा हमदर्द है। दोनों ने जल्दी जल्दी तैयारी की और दोपहर के वक्त तेज धूप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाल-ए-जार सुनाने के लिए रवाना हो गए। इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला हिस्सा अगली वीडियो में किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें।